برکت پرفضل اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں نہایت شکر گزار ہوں خداوند اپنے خدا کا، اس نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مل کر کلام خدا کو سیکھیں۔ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، موسم کی خرابی کے باعث بہت سارے نہیں آ سکے، تو بھی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موسم اتنا بھی خراب نہیں جتنا ہم سمجھ چکے ہیں۔ خدا ہم برکت دے۔ یہ تو ٹرائلز ہیں، سیکھنے کا عمل ہے کہ ہر طرح کے حالات میں ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں اور کلام خدا کو سیکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ یہ ٹریننگ سیشنز کہہ لیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں اور ہم یہاں پر موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سب کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہاللیلویہ۔ کئی ایک بار ہم سچائی کو جان نہیں پاتے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی آ جائے، لیکن کلام خدا کو جاننا نہیں چاہتے۔ میں ساتھ ساتھ لنکس بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ دوست ہیں، فیملیز ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ آپ ہمیں لنک جو ہے وہ ضرور فارورڈ کر دیا کریں۔ میں اس سے پہلے کہ آج کے کلام کی جانب آگے بڑھوں، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری ٹیم کو نام بنام۔ زرناب یہاں پر بیٹھے کیونکہ ہم 12 شاگردوں بلکہ 13 شاگردوں کی جو شہادت یا وہ طبعی موت مرے اس کے تعلق سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بٹ they did something، ان کی یاد آج بھی ہے کیونکہ انہوں نے یسوع کے لیے کچھ کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ یسوع کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ کے نام جو ہے سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے نام کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ اس دور میں جنہوں نے یسوع کے لیے کچھ کیا ان کے نام لکھے گئے ہیں اس کتاب میں جو کتاب مقدس ہے، لیکن اب جو یسوع کے لیے کر رہے ہیں ان کے نام بھی لکھے جائیں گے، لیکن ابدی کتاب میں۔ ہاللیلویہ۔ حیات ابدی کی کتاب کے اندر لکھے جائیں گے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر if you are doing something for Lord Jesus Christ، میں چاہتا ہوں کہ یہ 12 سے 13 رسولوں کے لیے جنہوں نے خدمت گزاری کا کام کیا ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ What a blessed time that we had۔ آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ تالیاں بجا کر انہیں اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ زرناب یہاں پر بیٹھی ہے، she is doing great work۔ Give a big hands for her also because she is doing great work for the Lord's kingdom۔ خداوند کی بادشاہی کے لیے زبردست طور سے یہ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح بھائی ساجن یہاں پر بیٹھے ہیں، بھائی ایرش یہاں پر بیٹھے ہیں، بھائی پالوس نہیں آ سکے، بھائی بابا جی مبشر یہاں پر ہیں، بھائی سیمسن آج نہیں آ سکے، سمسون۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی میڈیا سائٹ ساؤنڈ آپریٹ کرنے والوں کے لیے بھی تالیاں بجائیں۔ میوزیشنز یہاں پر بیٹھے ہیں، بھائی ہیری ہیں، بھائی سلویسٹر ہیں، مسکان ہے، میرب ہے یہاں پر، مریم ہے، ماریا ہے، سائرہ آج نہیں آ سکی طبیعت کی خرابی کے باعث۔ میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی ساری کوائر کے لیے تالیاں بجائیں۔ پریز گاڈ۔ ہاللیلویہ۔ ایڈمن کے لیے بھی، ہماری جو ایڈمن ہے جس میں ایمینول بھائی ہیں، بھائی شارون ہیں، دیگر ہمارے دوست ہیں، بھائی رفاقت ہیں، بھائی افضل ہیں، بھائی آصف ہیں، ان کے لیے بھی ایک بار زوردار تالیاں بجائیں۔ گیٹ پر جتنی ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیں، بھائی فراز کی ساری ٹیم کے لیے۔ ان سب تالیاں بجوانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ اور دیگر کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ
कर रहे हैं वो खुदावंद का काम है, और जब आप खुदावंद का काम करते हैं तो खुदा आपको बढ़ाता है, खुदा आपकी फिक्र करता है। लिखा है तुम मेरे घर की फिक्र करो, मैं तुम्हारे घर की फिक्र करूंगा। मत्ती रसूल का इंजीली बयान शहादत के ताल्लुक से बड़ा जबरदस्त कलाम है। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 28वां बाब उसकी 16वीं आयत से 20वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ये इंजील का यानी मत्ती की इंजील का आखिरी बाब है। 16वीं आयत से 20वीं आयत करीमा तक पढ़ेंगे। किताबे मुकद्दस में यूं मरकूम है, और 11 शागिर्द, सब कहें 11 शागिर्द, लेकिन हम 12 या 13 पालूस को भी ऐड कर लिया जाए, 13 शागिर्दों के ताल्लुक से आज सीखेंगे। लेकिन यहां पर लिखा है कितने शागिर्द, कितने शागिर्द? 11। यहां पर लिखा है 11 शागिर्द। कितने शागिर्द हैं जी? कितने शागिर्द हैं जी? एक जो है वो जा चुका रुपए लेकर। 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए। सब कहे 11 शागिर्द गलील के पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, यानी उस जगह पर जिसकी लोकेशन यीशु ने दी है। हालेलुया, व्हाट अ ग्रेट टाइम। और लिखा है उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया। सब कहें उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया। फिर कहें यीशु को देखकर सिजदा किया। कितने शागिर्द हैं जी? 11 शागिर्दों ने सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। क्या लिखा जी? बाज ने, इन्हां 11 दे विचों भी बाज ने शक किया। मैंने पहले कहा they are all not complete, ये कामिल नहीं है। ये जो 11 हैं, एक जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन ये जो 11 हैं ये भी कामिल नहीं है। ईमान इनका अप्स एंड डाउन हो रहा है। लिखा है 11 में से भी अक्सर ने शक किया। सुनिएगा, इतना सॉलिड या इतना मजबूत ना हो, आप ये समझते हो कि मैं ईमान में इतना मजबूत नहीं हूं, लेकिन दी गई लोकेशन पर मौजूद है, सिजदा भी कर रहे हैं, लेकिन ईमान डामाडोल है, शक है। सुनिए, लिखा है शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की। सब कहें यीशु ने बातें की और कहा आसमान और जमीन का, कहे मेरे साथ, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, कुल इख्तियार, कहे पूरा पूरा इख्तियार, फिर कहे पूरा पूरा इख्तियार। यीशु ने क्या कहा? किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को, क्या लिखा है? सब कौमों को, क्या लिखा है जी? सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ। फिर कहे आज कौमां उस्ताद बनियां ने, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੀ ਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਦਲੀ ਏ, ਕਿਦੋਂ ਬਦਲੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਏ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਏ। भाई मैं क्या कह रहा हूं? अक्सर लोग कहते हैं कि आपके पास जो बाइबल है वो बदल चुकी है। हैरानगी की बात है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आज कौमा उस्ताद बन रही हैं। हम उस्ताद हैं जिनके पास बाइबल है। लिखा है कौमों को शागिर्द बनाओ। हालेलुया। आज कौमा दा शागिर्द नहीं बनना,
कौमां दा उस्ताद बनना है। आप उस्ताद हैं, यीशु ने आपको कौमों का उस्ताद बनाकर भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। एवी निके निके ना होया करो। What a blessed time. कौमों का उस्ताद बनो, उन्हें शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। क्या करो जी? क्या करो जी? और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक, कब तक जी? कब तक जी? आखिर तक हमेशा तुम्हारे। हालेलुया, हालेलुया। लो जी, ए हवाला इन्हां 11 शागिर्दां ने पकड़ लिया। आज हम कहते हैं ये ग्रेट कमीशन है, ये यीशु का वो हुक्म है जो यीशु ने जाते हुए दिया। ये वो दस्तावेज हैं जिन पर शागिर्दों ने काम किया। मुसीबत के अंदर है, आरों के अंदर है, तेल के जलते हुए कड़ाक के अंदर है, उल्टी सलीबों के ऊपर है, एक्सनुमा सलीबों के ऊपर है, तबई मौत मर रहा है, बीमारी के अंदर है, हर तरह के हालात के अंदर है, गर्चे शेरों की मांद के अंदर है। ये हवाला साथ है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। लो जी, अगर यीशु ना ले, यीशु ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। अगर यीशु साथ है तो मेरी जिंदगी में मुसीबत क्यों? मैं हर तरह के हालात से दो चार क्यों हो रहा हूं? ऐसा नहीं लिखा कि तुम पर मुसीबत नहीं आएगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम मौत की साया की वादी में पड़े नहीं रहोगे, गुजर जाओगे। हालेलुया। आप मौत की साया की वादी में से गुजरने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप पड़े रहने वाले लोग नहीं हैं, गुजर जाएंगे। इस बात पर शागिर्दों का ईमान था। पहला शागिर्द जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है पतरस। पतरस के नाम का मतलब है चट्टान। यीशु का पुराना शागिर्द है। इसका जो जिक्र है हवाला जात में नाम के साथ बेशतर दफा आया। पहला कलाम इसने जो सुनाया यीशु के होते हुए नहीं, यीशु के जिस्मानी जिंदगी के अंदर नहीं। जब यीशु जी उठा, ये 10 दिन बालाखाना के अंदर दुआ में ठहरा रहा, और जब 10वें दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो लिखा है कि ये बाहर निकला, इसके मुंह खुला और इसने कलाम सुनाया। आपको पता है यीशु के लिए जो हुक्म या यीशु का जो कलाम पतरस के लिए था वो क्या था? यीशु ने कहा कि पतरस, मैं इस पत्थर पर कलीसिया कायम करूंगा। I will build my church on this rock. मैं इस पत्थर पर कलीसिया कायम करूंगा, यानी पतरस के वसीला से। पहला कलाम इसी ने सुनाया था। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब इसे बोलने की आदत थी तो जब यीशु सलीब पर जाने लगा, सफर का आगाज हुआ, वो वादा जो बरसों से किया गया वो पूरा होने का वक्त आया, तो पतरस ही पहला शख्स था जिसने कहा खुदा ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। फिर उसने कहा कि मैं दुखों में तेरे साथ रहूंगा। यीशु ने कहा कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू कितनी बार जी? कितनी बार दी? 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट ना इसके लिए हजम करना बात बड़ा मुश्किल था, बिकॉज ही वॉज ऑन फेथ। उसे पूरा भरोसा था अपने आप पे। कई एक बार आपको अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी ताकत पर, अपने आप पर भरोसा होता है। आप कहते हैं मैं नहीं बदलांगा यीशु, मैं तेरे नाल वफादार। ऐसा ही होता है ना, कई एक बार लोगों के साथ वफादार होते हैं और कहते हैं मैं नहीं बदलांगा,
मेरी वफादारी कदे नहीं बदल सकती, और वही लोग वक्त आने पर साइड हो जाते हैं। होता है, आपके साथ भी होता है। बड़े बड़े दावे करने वाले लोग 2 साल 4 साल बाद नजर भी नहीं आते कहां पे खड़े। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पतरस ने 3-3.5 साल यीशु के साथ गुजारे हैं। उसने कहा मैं सब शागिर्दों से ज्यादा वफादार हूं तेरे साथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लिखा है कि मुर्ग के बांग देने से पहले ये 3 बार इनकार कर गया था। ये है इंसान की वफादारी, ये है इंसान की वफादारी। और खुदा की वफादारी क्या है? लिखा है जब हम हालते गुनाह में थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ है। हालेलुया। जब हम हालते गुनाह में थे, ऐसी हालत में शायद दोस्त के लिए जान ना दे, लेकिन मसीह ने हमारे लिए जान दी है। पतरस इनकार कर चुका था, और 68 एडी में तक ये कलाम सुनाता रहा। पहला कलाम सुनाया, 3000 लोगों ने यीशु को कबूल किया। दूसरा कलाम सुनाया, तकरीबन 5000 लोगों ने यीशु को कबूल कर लिया। इसने कलीसिया की तामीर की। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु के आसमान पर जाने के 35 साल बाद, कितने साल बाद? ये यीशु के आसमान पर जाने के 35 साल बाद तक इंजील की मुनादी करता रहा, और फिर इसे सलीब दिया जाने को था। और नेरो बादशाह के दौर के अंदर, चूंकि रोमी गवर्नमेंट थी तब भी, तो उल्टी सलीब, इसने इसे सीधी सलीब देने लगे, तो इसने मुंह से कहा, इसने कहा कि सीधी सलीब मेरे आका यीशु को दी गई है, मुझे उल्टी सलीब दी जाए, मैं इस लायक नहीं। इनकार नहीं किया यीशु का। उल्टी सलीब पर चढ़ने वाला पतरस, सबके उल्टी सलीब पर चढ़ने वाला पतरस। सुनिए, रोम में 7 रसूलों की कब्रें मौजूद हैं। कितने रसूलों की? 7 रसूलों की कब्रें रोम में मौजूद हैं, और इसकी कब्र भी जो है वो आज तक रोम के अंदर मौजूद है। और इसकी कब्र पर तामीर किया जाने वाला जो चर्च है वो सेंट पीटर चर्च है, जो रोम के अंदर मौजूद है। अगर आप जाना चाहें, मैं ज़ियारत नहीं कहूंगा, सुनिएगा, ज़ियारत नहीं, अगर आप जाना चाहें हिस्ट्री के तौर पर देखने के लिए, सिजदा करने के लिए नहीं, मन्नत मंगन ली नहीं। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਟੁਰੇ ਜੇ ਭਾਜੀ, ਪੈਦਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਕਰਾਚੀੋਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ 12-15 दिन। तो मैं कहा स्टेज 2 भी करते जे? हाँ जी पादरी साहब, पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी भाई से, मुझे कहते पादरी साहब हम ना हर साल आते हैं ज़ियारत फलां फलां पे। मैंने कहा अच्छा, तो किदा आंदे जे ट्रेन ते? कहते नहीं 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 सर जी पैदल। मैं कहा इन्नी मोहब्बत? कहते हाँ जी। मैं कहा कदी बाइबल पढ़ी है? ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨਣਾ। What a nonsense! हम कहां पर खड़े हैं? ये यीशु के लिए उल्टी सलीब चढ़ गया, ये दुपट्टे नहीं बांध रहा, ये पैदल नहीं बिला वजह जाके कब्रां ते मत्थे नहीं मार रहा। He did something. इसने उस आयत को पकड़ा कि कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दो। मुनादी दर हकीकत यही है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस की शहादत के लिए, पतरस के लिए भी जोरदार ताली। दूसरा रसूल इंद्रियास, पतरस का छोटा भाई, इसके नाम का मतलब है बहादुर। ये वाकई बड़ा बहादुर था। बताता हूं किस हवाले से ये दूसरे शागिर्दों से ज्यादा बहादुर है। कई एक बार नाम रख लेते हैं, नामा का मतलब नहीं पता होता। मैं पिछले दिनों एक घर में गया तो उन्होंने बड़ा औखा जिहा एक नाम रखा बच्चे का।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਲਹਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲਹਾਮ ਖੁਦਾ ਲੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਲੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਚਲੋ रखा है, लेकिन तुसी बता रहे हो प्रॉपर कि मैंने ये सोच के रखा। अब मेरा नाम भी अनील है, लेकिन अनील का मतलब है अक्ल का बेटा, द सन ऑफ सेंस, सेंसर ऑन होने वाला। सो मैं नहीं कहता, में से बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो पाकिस्तानी नाम है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जब आपके सेंसर ऑन हो जाएं फिर लो जी मेरे दादे ने मेरे नाने ने ना रख देता सी। जब बाइबल पढ़ने वाले हैं तो फिर कोशिश करें बिब्लिकल नाम रखें। मैं पिछले दिनों एक भाई को मिला, उन्होंने कहा कि पादरी साहब मैं ना पाकिस्तान में जो है वो बाइबल के नाम नहीं रखता, फिर हमें जॉब्स और दीगर जगहों पर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मैं कहा ले जे तू ये सोच लिया तो मुसीबत तेरे अगे खलोती है, क्योंकि सोच से मुसीबत है ना। जे तू सोच लिया तो मुसीबत ते अगे, क्योंकि तू बाइबल नू पीछे कर देता है। लिखा है ये कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, तू इनू ही पीछे करी बैठा। रोशनी तो पीछे करती तू, क्योंकि तेरे सेंसर ऑन हो चुके ने कि बाइबल के नाम में बरकत है, फिर भी नहीं रख रहा। ये तो गलत है। फिर सुने, इसके नाम का मतलब है बहादुर। यही पतरस को यीशु के पास लाया। कौन लाया जी? इंद्रियास। कौन लाया जी? इंद्रियास यीशु के पास लेकर आया पतरस को, अपने बड़े भाई को। कितना जबरदस्त मैसेज है ना इंद्रियास की स्टोरी में, कि एक छोटा भाई है, उससे यीशु का पता चला। वो कहता आओ मैं तुझे बताता हूं, हमें ख्रिस्तुस मिल गया है, हालेलुया, यानी मसीह मिल गया है। इसने कबूल कर लिया कि हमें मसीह मिल गया। यीशु का पहला शागिर्द इंद्रियास है, हालेलुया। कौन से नंबर पर है जी? पहला शागिर्द इंद्रियास। खिदमत के एतबार से इसका जो क्राइटेरिया, ये कलाम सुनाने वाला नहीं है अपने भाई की तरह। गो ये पहले आया, लेकिन बाद में आकर इसका भाई, चूंकि बहुतियां गल्लां करदा सी, आसफ भाई वांगू ना बोलण वाला सी, बहुता गलतियां भी करदा सी। सो ये अपने छोटे भाई से ज्यादा करीब हो गया। सुनिए, छोटे यानी ये अपने छोटे भाई से ज्यादा यानी पतरस जो है यीशु के करीब हो गया। लेकिन इंद्रियास जो है, इसकी जो खिदमत है, लिखा है कि इसकी जो खिदमत है वो डीकन की खिदमत है। कलीसिया के अंदर खाने पीने का इंतजाम करता, रोटी पानी सिद्धि पदरी करनी। अब यही यूहन्ना 6 के अंदर लिखा हुआ है कि जब यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया ना, तो यीशु ने आवाज भला किसको दिया? इसी को आवाज दिया कि इंद्रियास तू खाने पीने का इंतजाम कर। फिलिपस को भी आवाज दिया। अमाल 6 के अंदर भी लिखा हुआ है, ये हवाला आप लिख लें। अमाल 6 के अंदर डिक्लेयर किया गया कि इंद्रियास जो है ये डिकन की खिदमत सरंजाम दे रहा है। और जब इसे सलीब दिया गया, सुनिए, इसे भी इसके भाई की तरह एक्स नुमा सलीब पर चढ़ाया गया, यानी टांगे भी खुली होंगी और बाजू भी खुले होंगे। एक्स सलीब पर इसे दिया गया। और जब इसे सलीब दिया गया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक्स नुमा सलीब थी। पतरस को एक्स नुमा उल्टी सलीब थी, लेकिन ये एक्स नुमा सीधी सलीब थी। और ये सीधी सलीब पर चढ़ा था, और ये अपने भाई पतरस से 8 साल बाद सलीब पर चढ़ाया गया। यानी यीशु का पहला शागिर्द है, इसका बड़ा भाई जो है वो पहले जो है वो चला गया, 68 के अंदर चला गया। लेकिन ये यीशु से यानी उसके
पतरस से बात किया। सुने, ये सलीब पर जब चढ़ा तो 2 से 3 दिन तक ये जिंदा रहा है। हाथ पांव में कील है, मारा गया, कूटा गया, 2 से 3 दिन तक ये सलीब पर लटका रहा है। और राह के किनारे से सलीब दिया गया था जहां से लोग गुजरते थे, ताकि लोग जाने कि यीशु पर ईमान रखने वालों का जो अंजाम है वो क्या होगा। सुनिए, इसने क्या किया, जब लोग गुजरते थे ना, इसका मुंह बंद नहीं हुआ, ये यहाँ कुरला नहीं रहा कि यीशु तू मैनू बचा ला, यीशु मैनू सलीब क्यों दिता गया, यीशु मैं सलीब तो उतर जावा। उतरने के लिए दुआ नहीं कर रहा, मुसीबत में से निकलने के लिए दुआ नहीं कर रहा, उस अजियत, उस दुख, उस कर्ब से निकलने के लिए दुआ नहीं कर रहा। इंद्रियास यीशु का पहला शागिर्द, पतरस का छोटा भाई, ये जब एक्सनुमा सलीब पर चढ़ा तो ये उस सलीब से उतरने के लिए नहीं पुकार रहा, बल्कि राह जाते लोगों से कहता है, डू यू नो अबाउट जीसस, क्या तुम यीशु के बारे में जानते हो। लोग इसे मारते, इसको पत्थरों से मारते, इस पर थूकते, दुत्कारते, लान तान करते, गालियां देते और वहां से चले जाते, तो भी इसका मुंह बंद नहीं हुआ जब तक इसके सांस चल रहे हैं, यीशु का पैगाम चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, आपके सांस चल रहे हैं, क्या यीशु का पैगाम चल रहा है, क्या यीशु का कलाम चल रहा है आपकी सांस के साथ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हर तरह के कर्ब के अंदर इंद्रियास सलीब पर राह चलते लोगों को बताता रहा कि यीशु राह निजात है, यीशु के पास आ जाओ, वो तुम्हें निजात दे सकता है। इसका जस्ट देखा कि स्कॉटलैंड के अंदर जो है वो 100 साल के बाद रोम से स्कॉटलैंड के अंदर इसका जस्ट देखा कि ले जाया गया, और इसका जस्ट देखा कि जो है वो एक स्कॉटलैंड के जजीरे पर रखा गया, जिसका नाम जो है वो जजीरे का नाम जो है वो सेंट एंड्रयू आइसलैंड है, और वहां पर इसका जस्ट देखा कि जो है वो रखा गया। तीसरा शागिर्द जब्दी का बेटा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब्दी का बेटा यूहन्ना। यूहन्ना के नाम का मतलब है यहोवा मेहरबान है। यूहन्ना शागिर्दों में सबसे कम उम्र था, छोटा था। कुछ लोग कहते हैं ये यूहन्ना वही है जो यीशु का भाई था, लेकिन ऐसा जिक्र हमें नहीं मिलता कि यीशु का भाई है, लेकिन ये जरूर मिलता है कि ये था यहूदी। लेकिन ये सबसे लंबा जिया जी, इसकी जो उम्र है वो 94 बरस हुई है। इंजील की मुनादी करते हुए पकड़ा गया, स्टेडियम में बहुत सारे लोगों के सामने आई एविडेंस रहा। ये आई एविडेंस रहा खुदा ने इसकी जिंदगी में काम कैसे किया। शागिर्द का नाम क्या जी? यूहन्ना। क्या नाम है जी? मेरे साथ रहिएगा, मैं बता रहा हूं कि शागिर्दों को किस तरह की अजियतों का सामना करना पड़ता है। हमारी टीम यहां पर बैठी है, खुदा ना करे अगर कोई छोटा मोटा मसला भी हो जाए तो आप ईमान में कितना मजबूत हैं। ये मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं, जो यीशु के साथ चलते हैं उनके लिए दुख, तकलीफें, सलीबे, हाथों पांव पे कील, कुछ मैंने नहीं रखते, लो यीशु ना लग जाए ता। सुनिए, यहोवा मेहरबान है, इसके नाम का मतलब है शागिर्दों में सबसे छोटा, 94 बरस तक जिया, तबई मौत मरा, इसे सलीब नहीं दिया गया, और यही जजीरे पर जिलावतन कर दिया गया था, पतमस के जजीरा पर। सुनिए, इसने मुकाशफा की किताब लिखी थी। सुनिए, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा लिखने वाला यही शख्स था। इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ था, लिविंग टेस्टमनी थी इसकी। भला क्या थी? इसको मारने के लिए ये नहीं कि हरबानी किया गया जैसे दूसरों को मारने के लिए हरबे किए गए, इदा काम कंप्लीट नहीं सी होया, हले किया क्या गया था इसके साथ।
लिखा है स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम वो था जहां पर थिएटर होता था, ये स्टेडियम वो था जहां पर थिएटर होता था। आज भी खुदा आपको लेकर जाए रोम के अंदर, इजराइल के अंदर, तो उन इलाकों में स्टेडियम्स की बाकियात जो है वो आज भी मौजूद है। इसकी बाकियात भी मौजूद है स्टेडियम की, जहां पर इसको जो है वो जलाने की कोशिश की गई। थोड़ा जलाना भले कैसे, उबलते हुए तेल के कड़ा के अंदर इसे डाल दिया गया था। यूहन्ना को, जिसने मुकाशफा की किताब लिखी है ना भाई, सुन रहे हैं, ਐਵੇਂ नहीं मुकाशफा की किताब ताड़े तक पहुंची। वो यूहन्ना जिसने मुकाशफा की किताब लिखी, वो यूहन्ना जिसको ये कहा गया कि देख तेरा बेटा, यानी मरियम के बारे में कहा गया कि तेरा बेटा ये है, तेरी माँ ये है, इसको जलते हुए तेल के कड़ा में बहुत सारे लोगों के सामने डाल दिया गया। लिखा है इसका बाल तक नहीं जला, तेल ठंडा हो गया, आग दे उत्ते प्याई। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेस्ड टाइम। जब आपका मकसद है जिंदा रखने का, जब खुदा ने आपको रोया दी है, जब खुदा ने आपको काम दिया है, ओ कंप्लीट किते बिना तुसी सजे खबे नहीं हो सकते। हालेलुया, ताड़ियां सावा चलन ही चलन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लंबा जीना चाहते जे, लंबी रोया रखो। हालेलुया, रोया रखें। मैं कलाम सुना रहा था, मुझे किसी ने कहा पादरी साहब साल ब साल कैसे खुदा को लो लै सकने अगे। मैं कहा तुसी एक साल छड्डो, तुसी अगले 10 साल खुदा नु को खुदा अगले 10 साल दी रोया दे, ते अगले 10 साल दी रोया आ गई ते तुसी किते नहीं जांदे। हालेलुया, लंबा जीना चाहते जे ते काम रब दा करना है। सुने, जलते हुए तेल के अंदर डाला गया, नहीं जला, तेल ठंडा हो गया, क्योंकि अभी कलाम बाकी था। हालेलुया, जजीरे पर चला गया, फिर भी जिंदा भाई। कलाम की मुनादी कर, और मुकाशफा की किताब इसी ने लिखी है। मुकाशफा की किताब लिखने वाला यही। और इफिसस में यूहन्ना 94 बरस का होकर तभी मौत मरा। ये शागिर्दों में वाहिद शागिर्द था जो अपनी तबई मौत मरा है, और तुर्की में इफिसस में आज भी दफन है। सुनिए आगे, चौथा फिलिपस। ये फिलिपस पलूस के बाद मेरा बड़ा खास एक करैक्टर है, जिसको मैं दिल से मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ बाइबल के करैक्टर से, लेकिन इससे कुछ खास रगबत है मुझे। भला क्यों? क्योंकि ये खिदमत के एतबार से ना, फिलिपस था डीकन था। इसकी 4 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था, और चारों बेटियां कवारी रही, उन्होंने शादी नहीं की, और वो नबिया थी। चारों बेटियां शादी नहीं की, इसने तरबियत आगे की है, उन्होंने शादी नहीं की, और वो नबिया थी। और पलूस इसके घर में ठहरता होता था। अब ये फिलिपस जो है ना, ये मुनादी करता था यरूशलेम के अंदर। अमाल 8 के अंदर लिखा है मुनादी। भला क्या थी इसकी? फिलिपस के बारे में लिखा है यूहन्ना की इंजील में भी कि ये डीकन की खिदमत करता। तो ये डीकन की खिदमत इसे यीशु ने जींदे जी दे दी थी। शागिर्दों ने बाद में नहीं कहा कि तू छोटा है, वड्डा, तू कलाम नहीं सुना सकता, तू घट पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा तो पतरस भी नहीं था, लेकिन उसकी खिदमत मुनाद की थी। ये खिदमत उसे यीशु ने दी थी कि तू कलीसिया कायम करेगा। लेकिन इसके लिए जो खिदमत थी यीशु ने जो दी थी, जो 5000 रोटियां वाला मौजा था ना, यीशु ने फिलिपस से कहा था कि तू रोटियां का इंतजाम कर, तू इधर उधर ना वेख। कई दफा होता ना, लोग कहते हैं नहीं खिदमत ते मेरी ता ये जे मैं कलाम सुनावा। लो आ कादी खिदमत है? इत्थे बैठ के ते हाथ रख के, ऐ केड़ी खिदमत है मैं साउंड ते बैठ जावां? ऐ केड़ी खिदमत है कि मैं
मीडिया चलाऊं, मैं बाहर बैठ जाऊं, मैं गेट पर खिदमत करूं, ये कौन सी खिदमत है? अगर खुदा ने आपको दुआ करने की खिदमत दी है तो भाई आप दुआ करें। दुआ करना भी खिदमत है कि आप रसूलों के लिए, खिदमत गुजारों के लिए दुआ करें। गौर से सुनिएगा, यहां पर फिलिप्पुस का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है जी? चौथा शागिर्द फिलिप्पुस जिसका जिक्र हो रहा है। ये गलील का रहने वाला था। इसके नाम का मतलब है घोड़ों का दोस्त। इसकी रफ्तार भी बड़ी जबरदस्त थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और सुनिएगा, ये डीकन की खिदमत करने वाला शख्स, रोटियां लाने वाला, जुतियां सीधियां करने वाला, भांडे धोने वाला बंदा, लिखा है इसके खिलाफ जो है ना यरूशलेम में बगावत हुई, लोगों को घसीट घसीट कर मारा जाता था। ये वहां से भागा, फैमिली छड़ी ते हादसाती तौर पे अमाल 8वें बाब में लिखा है कि ये स्लिप होकर, परागंदा होकर जाना नहीं चाहता था कि एक बार आपके प्लान जो है वो कुछ जगहों के नहीं होते, लेकिन खुदा आपको ले चलता है। खुदा इसको ले गया। अब ये हादसाती तौर पर सामरिया के अंदर, कहां पर गया जी? ये वही इलाका है जिसने यीशु को रद्द किया था। अब ये वहां पर पहुंच गया। वहां पर शमौन जादूगर था जिन्हें पूरा शहर अगे लाया सी। लेकिन लिखा है कि जब ये वहां पर गया, ये मुनादी करन लग पिया, छुपया होया टैलेंट निकले, मौका मिले। हुन रोटियां लाना लाया ना कि मैनू मौका ऐसे स्टेज ते मिलेगा। खुदा किसी और जगह ते, किसी घर च, किसी इलाके च ला जाए, उत्थे जाके तुसी कलाम दी मुनादी करो, रुआ जी। तो अब हुआ ये इतने शहर बदला, इलाका बदला, सामरिया के अंदर गया और सामरिया के अंदर जाकर कलाम की मुनादी करने को लिखा है। पूरे शहर में खलबली हुई। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसके लिए जो इंग्लिश का लफ्ज है ना, लिखा है उनकी इकोनॉमी अप्स एंड डाउन कर दी बंदे ने। जंज ईरान ते इजराइल ते अमेरिका दी जंग ने ताड़ी इकोनॉमी नु छेड़या ना, लिखा है ये शख्स जाकर मुनादी कर रहा है, पूरा शहर दे पीछे लग गया। कारोबार बंद, दुकाना बंद, कोई खोल रहा कोई बंद, पूरा शहर दे पीछे। ते शमौन जादूगर दा भी पट्ठा बह गया। लिखा है जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह तेरी हो जाएगी, लेकिन कदम कलाम सुना नाले हों ते फिर। हालेलुया। कलाम सुनाने वाले कदमों, ये गया पूरे शहर में इसने खलबली डाल दी है। और लिखा है कि ये 20 साल तक खुशखबरी फैलाता रहा। बाद में से भी उल्टी सलीब दिया गया और ये रोम के अंदर दफन कर दिया गया। इसकी 4 बेटियां थी। पलूस के बाद जो है इसे सलीब दिया गया, उल्टी सलीब जी। 5वां शागिर्द नतनिएल। मेरे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैं एक समझ लें कि समंदर को कूजे में बंद कर रहा हूं। मुझे ये भी एक भाई यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने कहा था कि पादरी साहब हर हफ्ते एक शागिर्द, इसको आप बड़ी डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम कम है। 5वां शागिर्द नतनिएल का दूसरा नाम बरतमाई, तमाई का बेटा बरतमाई। अच्छा, ये बरतमाई जो है, ये बरतमाई का मतलब है तुमाई का बेटा। अर्मीनिया में मुनादी के दौरान हुआ क्या इसके साथ? इसने मुनादी कर रहा था, अर्मीनिया में चला गया यीशु के बाद, और सन 71 ईस्वी में जिस्म से चमड़ी उतार दी गई। इसके पूरे जिस्म से चमड़ी उतारी गई है, यानी पूरे मुंह से भी, पूरी बॉडी से चमड़ी उधेड़ दी गई है इस शागिर्द की, बरतमाई की। और चमड़ी उधेड़ कर इसे सलीब दिया गया। कुछ कहते हैं कि इसे समुद्र में फेंक दिया गया। सलीब देने के बाद इसके जस्ता खाकी जो है, इसकी कब्र मौजूद नहीं है आज तक। कहा यह गया
کہ बरतमाई की कब्र जो है वो उसके एविडेंस जो है वो हिस्ट्री में नहीं मिलते, लिहाजा बरतमाई को, अच्छा जिन्ना नु सुनो जरा, यसु ने चुनिया अपने माँ बाप भैन भरा रिश्तेदार नातेदार सारे यार दोस्त बेली छाड़ के ते यसु दे पीछे टुरे। यसु ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। ते इन्हां नूं ते मौत लभी है ना, हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। यसु ने कहा हमेशा की जिंदगी मेरे पास है। लो जी, ये मुतलाशी सन हमेशा दी जिंदगी दे, इसलिए इस मौत नाल यसु दे पिछे चलदियां कोई फर्क नहीं पिया। अजियत आई नहीं हले पाकिस्तान च, अजियत की हवा भी नहीं है इतनी, ते लोकी डरे बैठे ने कि पाकिस्तान दे विच भाजी कुछ भी हो जांदा, इत्थे ते ऐ हुंदा ओ हुंदा। लो इतों माड़े हालात, चमड़ी उधेड़ कर सलीब दिया गया है, उसके बाद इसकी बॉडी को समंदर में डाल दिया गया और जानवर खा पी गए, लेकिन जिंदगी में दाखिल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ ब्लेस्ड टाइम। छठा शागिर्द, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। यीशु ने एक शख्स को चुना जो मसूल लेने वाली, जजिया लेने वाली चुंगी पर बैठा था, ते चंगा नसी समझा जाता, टैक्स लेने वाला। मैंने अगले दिन देखा है यहाँ पर रोड पर ना, टैक्स कलेक्टर था बंदा, हाथ में एक छोटी सी पर्ची पकड़ी हुई थी, और वो ना चिंची के पीछे भागा, उसने ऐसे पकड़ा कि उन्हें तेज कर दी तो डिग गया, उधर गोडे गोडे छिले गए। मैं कह लो आज टैक्स कलेक्टर, जजिया है ना वो भी, उसमें से गवर्नमेंट को भी कुछ जाता होगा कि आप हमारे एरिया में गाड़ी या कोई लेन देन करना तो आपने टैक्स देना। टैक्स कलेक्टर से लोग जान छुड़ाते हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं ना वो जानते हैं। टैक्स कलेक्टर, मसूल लेने वाला, और इन्हें समझा जाता था कि रिश्वतखोरी करते हैं। आज भी इन्हें यही समझा जाता है कि टैक्स लाने वाले नूं अगर टैक्स माफ करवाना तो थोड़ा बहुत समझा जाता है, अच्छे भी हैं, लेकिन ये टैक्स कलेक्टर था और यीशु को देखता जा रहा है, देखता जा रहा है। यीशु ने कहा मत्ती, मसूल लेने वाले मेरे पीछे आ। उठा तो यीशु दे पीछे टुर पिया, बगैर जाने के बंदा कौन है। ऐसी ही आवाज अब्राहम ने सुनी थी, उसने कहा तो मेरे लिए नातेदारों में से निकल। लो, अब्राहम से पहले तो कोई खुदा को नहीं था ना जान, तो उसे ईमानदारों का बाप भला क्यों कहा जाता है कि एक आवाज आई है, बस आवाज आई है, पता नहीं किसकी आवाज है, आवाज आई है और वो उसके पीछे चल पड़े। अब्राहम उसके पीछे चल पड़ा। आज तो जानते हुए नहीं ना चल रहे, वो बिना जाने चल पड़ा था, उसे ईमानदारों का बाप इसीलिए कहा गया। ये भी नहीं जानता था कि शख्स है कौन, इसकी जॉब फर्क है, ड्यूटी फर्क है, बिजनेसमैनों के दरमियान रहता है, लेकिन यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चल। मत्ती के नाम का मतलब है खुदा का तोहफा। ये चल पड़ा और इथियोपिया के अंदर, शाम के अंदर जो है ये खिदमत गुजारी का काम करता रहा, और इथियोपिया के अंदर इसे, यानी मौजूदा अफ्रीका के अंदर, कालों के अंदर ये मुनादी कर रहा था। उन्होंने उसे तलवार से मार दिया, जो है शहीद कर दिया। तबई मौत नहीं मरा, तलवार से मारा गया। कुछ कहते हैं क्या सराइयां है कि तबई मौत मरा, लेकिन हिस्ट्री में ज्यादातर लोगों का जो तज्जिया वो यही कहते हैं कि जी ये तलवार से मारा गया था और इटली में दफन किया गया था। सातवां शागिर्द थॉमस, तोमा मतलब जुड़वा, इसके नाम का मतलब है जुड़वा। जब लाजर मर गया तो इसने अपने शागिर्दों के साथ, यानी यीशु अपने शागिर्दों के साथ गया, तो तोमा यानी तोआम
वो भी यीशु के साथ था। यीशु से अपने साथ ले गया कि आओ हम चलें, ताकि उसके साथ ये यीशु के साथ चला गया। लेकिन तब तक इसके अंदर शक नहीं था। सुनिएगा, ये इसने लाजर को जिंदा होते हुए देखा हुआ है। इस शख्स ने यीशु के साथ बहुत सारे मौजूद देखे हैं, शक में नहीं है। लेकिन कुछ अरसा के बाद इसमें शक आ गया, तो आम यीशु के साथ चलता रहा। और आपको पता है, जब यीशु पकड़वाया गया तो यही शागिर्द था जो कहता था आओ ਇਹਦੇ पीछे चलिए तो ਇਹਦੇ पीछे मर जाइए। तोमा ऐसा शख्स था जो कहता था यीशु के पीछे चलिए। जब वो मुसीबत में गया, यीशु की हजार आसानियां शुरू हुई, सलीबी दौर शुरू हुआ, तो कहता आओ यीशु के पीछे चलिए तो मर जाइए यीशु ने। What a faith! लेकिन कुछ अरसा के बाद ये शक करने लगा। जब यीशु जी उठा तो ये शक करने लगा। शक किया इसने मुनादी किया केरला के अंदर, चीन के अंदर, भारत के अंदर। ये भारत तक आया, चीन तक आया, और केरला इलाका है भारत का, वहां पर इसने केरला के अंदर बहुत ज्यादा मुनादी की है। जी कुछ कहते हैं टेक्सला तक भी आया। 53 एडी में पहाड़ी पर दुआ कर रहा था, तो पिछों किसी ने धक्का देता है तोमा को। ये वही है जो मेहों में उंगलियां डालकर चेक करना चाहता था। लिखा है कि इससे ये पहाड़ी पर बैठकर दुआ कर रहा था, पिछों किसी ने धक्का दे के इनू पहाड़ी तो सुट दिता। और जब ये गिरा तो फिर चेन्नई के अंदर, इंडिया चेन्नई के अंदर इसे दफन किया गया। और आज भी इसकी जो बाकियात है, जिसने खाकी है, वहां पर मौजूद है। जी 8वां शागिर्द है जी शमौन ज़ेलोतीस। मतलब है इसका उसने सुना है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये 40 बरस का था जब यीशु का शागिर्द बना। गलील का रहने वाला था, और ये मौजूदा इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर मुनादी करता रहा। ज़ेलोतीस, शमौन ज़ेलोतीस जो है, ये मौजूदा यूके के अंदर मुनादी करता रहा। कुछ कहते हैं इसे सलीब दिया गया, कुछ कहते हैं इसे आरे के अंदर चीर कर इसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए और अरमानिया के अंदर इसे दफन किया गया। सुनिए, मैं तमाम तर शागिर्दों को हिस्ट्री के साथ बता रहा हूं कि ये हिस्ट्री इनके बारे में क्या कहती है, इसके पीछे बड़ी तहकीक होती है। सुनिए, कुछ कहते हैं कि इसे आग में जलाया गया था, कुछ कहते हैं सलीब दिया गया ज़ेलोतीस के बारे में, कुछ कहते हैं इसे आरे के अंदर चीर कर इसके 2 हिस्से कर दिए गए, कुछ कहते हैं कि इसे आग में जलाया गया था, लेकिन ये तबई मौत नहीं मरा। 9वां शागिर्द याकूब, जब्दी का बेटा, सलोमी का बेटा, यूहन्ना का बड़ा भाई। अच्छा, ये यूहन्ना वही है जो 94 बरस जिया और मुकाशफा की किताब लिखी, उसका भाई है जी पतरस। याकूब और यूहन्ना पता आप सुनते हैं, लेकिन पतरस का भाई जो है वो इंद्रियास था। पतरस ज्यादा यीशु के करीब हो गया, इंद्रियास थोड़ा शायद इंद्रियास ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਚੱਲ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ, ਚੱਲ ਘਰ ਦੌੜ ਜਾ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੱਡੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ, ਹਲੇ ਲਿਆਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ये दूजे तीजे काम करता रहे। इंद्रियास की खिदमत उतनी नहीं रही जितनी पतरस यीशु के ज्यादा करीब रहा, और उसे गिफ्ट भी अच्छा मिला कि तुझ पर पहला कलाम ही तू सुनाना पा। बड़ा ऑनर होता है कि शागिर्दों में से कहा जाए कि पहले नंबर पे तू। अच्छा जी, अब 2 भाई हैं याकूब और यूहन्ना।
انہیں کہا گیا جی گرج کے بیٹے بھی کہا گیا, گرج کے بیٹے بھی کہا گیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یائر کی بیٹی کو جب زندہ کیا گیا تھا تو یعقوب اور یوحنا بھی وہاں پر موجود تھے. اعمال 12ویں باب کی پہلی 2 آیات پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اسے تلوار سے شہید کیا گیا تھا اور سیم ڈے میں ہی پترس کو پکڑ لیا گیا تھا. یعنی یعقوب کو, یوحنا کے بھائی کو جس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی ہے, یہ بھائی جو ہے اب وہ تو زندہ ہے یوحنا, لیکن اس کو جس دن پترس کو پکڑا گیا نا اسی دن اسے تلوار سے یعنی محل کے کنگرے میں اس کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ کر کے اوپر سے سر ایسے پھینکا گیا تھا یعقوب کا. بادشاہ نے کروایا تھا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دو یعقوب کو اور پترس کو پکڑ لو, کیونکہ سیم ڈے میں یہ یہودیوں کے اندر منادی کرے تھے یروشلم کے اندر, سیم ڈیز کے اندر. اب پترس اور یعقوب, یوحنا ابھی باقی ہے. یہ 3 یسوع کے قریبی شاگرد تھے. میں اس لیے یہاں پر تھوڑا دیر رکنا چاہتا ہوں. یہ تینوں یسوع کے قریب شاگرد تھے, پترس یعقوب اور پترس یعقوب اور یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب لکھی. پترس نے پہلا کلام سنایا. اب بات آ گئی یعقوب کی, تو یعقوب جو ہے اسے محل پر لے جایا گیا اور ہیرودیس بادشاہ اگرپا نے ہیکل کے کنگرے پر سوری محل کے نہیں ہیکل کے کنگرے پر لے جا کر نصیحتاً کہا کہ جو کوئی ان کے پیچھے آئے گا ان کا حال یہی ہوگا, اس کا سر دھڑ سے الگ کر دو. اتو ایسے پھینکا گیا اور پترس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو اسپین کے اندر جو ہے اس کی باڈی کو یروشلم سے لا کر اسپین کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیا گیا. اور سینٹ جیمز کیتھولک چرچ اس کی جہاں پر قبر ہے جسد خاکی ہے وہاں پر سینٹ جیمز کیتھولک چرچ اسپین کے اندر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. پھر خلفی کا بیٹا یعقوب, پوری بائبل میں 4 حوالہ جات میں اس کا ذکر ملتا ہے. 62 AD میں کچھ کہتے ہیں اس سے صلیب دیا گیا اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی یہ یروشلم میں یہودیوں میں تعلیم دے رہا تھا, اور کچھ کہتے ہیں فلسطین تک آیا تھا اور یہ فلسطین کے اندر مارا گیا تھا. اس نے کنٹری چینج کی تھی, اس کے بعد فلسطین میں چونکہ بت پرست لوگ تھے انہوں نے اسے مارا تھا. کچھ کہتے ہیں رومیوں نے صلیب دے دی تھی. 2 خیال گردش کرتے ہیں آج دنیا میں اس کے بارے میں. جی یہودا تدی مطلب ہے نام کا پورے دل سے. یہودا نے خط بھی لکھا. آپ کو پتہ یہودا کا خط, یہودا خط لکھا ہوا ہے نا, پترس نے بھی خط لکھا ہوا ہے, یعقوب کا بھی ہے. یہ یہودا نے خط بھی لکھا. میں زیادہ پہلے کا ڈیٹیل میں نہیں, میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کیا کیا, یہودیہ, سامریا, پھر لیبیا یعنی موجودہ لبنان میں انجیل کی منادی کی اور 70 AD میں تیروں سے چھنی کر دیا گیا, مارا گیا. آگے جی ہر دل عزیز یہودا اسکریوتی, یہ بڑا زبردست کریکٹر ہے یہ بھی بائبل کا. اچھا جب تک یہ یسوع کے ساتھ رہا نا راہ وفادار ہے, جے گیا تے پکا ہی گیا. یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, کہندے لو جے ہے وہاں تے تیرے ہی ہیں. لکھا جنہوں نے شک کیا تھا وہ 11 میں کم از کم موجود سن. توما بھی تو موجود ہی سی نا, لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی, وہ تھا خدمت میں جو یہ فیل ہوا ہے نا, ہوا بلا کس وجہ سے ہے. دل لے لے میرا پیارے یسوع, اس کو تو نے بنایا ہے, جیب نو ہاتھ نہ لائی یسوع, اینو میں کمایا ہے.
है ना, पैसे का इंचार्ज था, फंड में से कुछ चोरी करता रहता था। मुझे कल किसी ने एक वीडियो भेजी, क्योंकि मैं ये कलाम रेडी कर रहा था, मेरे एक दोस्त हैं पादरी साहब, उनसे बात और मुझे कहते भाई साहब है ना नंग दी एक वीडियो आ गई है तो जरा देखो। वो शख्स कहता है, मैंने अपने फैमिली ग्रुप में भी भेजी, क्योंकि मैं भेजता हूँ ऐसे फनी थोड़ी सी होती हैं चीजें। तो अच्छा, उसमें ना वो कहता है कि रब्बा मैनू इन्ना दे मैं गरीबां नू दवां, रब्बा मुझे दे मैं गरीबां नू दवां, मुझे दे मैं गरीबों को दूं। पीछे दूसरा शख्स खड़ा होता है गरीब, वो कहता है यार तू अपने लिए जो मंगने है तू सानू देना है, तू विचों निकल, हाँ सीधा ही आन दे, है तू सीधा ही डायरेक्ट ही आन दे। कहते तू बड़ा होशियार है कि तू विचों रखना चाहना है, मैनू दे मैं विचों कुछ रखा तो फिर मैं गरीबां नू दवां, तू सीधा ही आन दे। अच्छा, बहुत सारे लोगों की दुआएं ये होती है ना, मैं है तो मजाहिया बात है लेकिन सीखने लायक है रफाकत भाई, मुझे दे मैं विचों कुछ रखा तो फिर गरीबां नू दवां। वो कहंदा भाई तू सीधा ही आन दे, डायरेक्ट आन दे, तू विचों निकल, तू साडे लिए क्यों नहीं दुआ करदा, रब्बा सीधा ही गरीबां नू दे, रब्बा तू मैनू दे मैं गरीबां नू देना। यूदा इस्करियोती जो है ना, ये कुछ ऐसी सोच का ही मालिक था, ये फंड च कुछ रख लेंदा ही, कुछ ला देंदा ही, कुछ खा जांदा ही, कुछ साडे कोई कपड़े जुत्ती विचों सीधे कर ले, कोई लटरम पटरम। फिर गरीबां नू यसू ने जो कहना, उन्हें क्या पैसे थोड़े ने, यसू ने क्या रोटी का इंतजाम, उन्हें क्या लोग बहुत ज्यादा ने, बटवा मेरे को लिए पैसे घट ने। क्या अच्छा, फिर उन्हें क्या नहीं पूरियां होनियां रोटियां, रहन दे जेड़े आने फंड। अच्छा, पैसे का लालच इतना हो गया कि 30 सिक्कों में यीशु को बेच दिया। अब बेचने की जो रीजन थी ना वो बड़ी जबरदस्त है। ये गवर्नमेंट करना चाहता था, रोमी गवर्नमेंट से निकलना चाहता था, और ये पतरस की तरह जंगजू सूरमा था, तलवार अच्छी चला लेता था और इसके पास भी हथियार होता था, खंजर, यानी छोटी मिनी जो स्वर्ड्स हैं, तलवारें हैं, इनके पास होती थी, मिनी स्वर्ड्स, छोटी तलवारें, चाकू खंजर कह ले, इसके पास भी होता था। और ये सूरमा था और इसकी ख्वाहिश ये थी कि यीशु जो है वो रोमियो के खिलाफ खड़ा हो ते मैनू गवर्नमेंट च कोई मिनिस्टर दा, वजीर दिफा दा कोई ओहदा मिल जाए, तो मैं इजराइल ते बह के गवर्नमेंट करा, तो मैं दसा कि गवर्नमेंट हुंदी की है। बहुत सारे लोगों की सोच ये थी। जब इसने देखा ना कि यीशु घोड़े पर नहीं गधे पर बैठ के यरूशलेम में दाखिल हुआ, उसने कहा कि मैं जंग नहीं करनी, मैनू पकड़वा दिया जाएगा, मारा जाएगा तो मैं मर जाना। ने कहा है इन्ने साल जाया कर देते, मैं तो कुछ और समझ रहा था कि ये तो गवर्नमेंट में मुझे ओहदा मिलेगा, लेकिन ये क्या हुआ। अरे भाई रुकें, कि एक बार आप भी यही गलती करते हैं, आप यीशु के साथ अपनी सोच लेकर चल रहे होते हैं, और जब यीशु अपना प्लान देता है आप टूट जाते हैं। और इसने क्या किया, पैसे का लालच तो दिल में था, लिखा है शैतान इसमें समा गया, इसने यीशु का सौदा किया, 30 चांदी के सिक्कों के यीशु को बेच दिया, और फिर यीशु को बचाने की कोशिश करने लगा। डर गया, मोहब्बत भी सी ना। कई दफा लोग कहते मेरे मुंह से निकल गए, मेरे को लोग गलती हो गई, लेकिन मैं तेना प्यार बड़ा करना। वो एक कहावत है, अब क्या पछताए जब चुग गई खेल। अब ये 30 सिक्के उन्होंने मुंह ते जाके मार दिया कहीं ना दे कि मेरी डील कैंसल डील कैंसल कर दो, मैंने ये डील नहीं करनी, मुझे यीशु वापस चाहिए। कि एक बार आप इस तरह की डील्स कर लेते हैं, चंद लोगों के लिए, चंद सिक्कों के लिए, चंद ख्वाहिशात के लिए यीशु का सौदा कर देते हैं, और फिर आप पछताते हैं और कहते हैं कि यीशु
मैं इस डील को कैंसिल करता हूं, लेकिन वो मौका नहीं देता। और लिखा है ये पैसे हैकल मर फेंक कर वापिस चला गया। इसने फांसी ली और फांसी लेने के बाद इसका पेट फट गया, सारी अंतड़ियां बाहर निकल आई। पेट के लिए किया था, नुकसान हुआ। कि एक बार आप यीशु के साथ पेट के लिए करते हैं, अरे भाई पेट फट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। पैसा पेट में डालता था, लालच था, और वो लालच पेट का था। पेट फट गया, सजा मिली। सुनिए, लालच आपकी खिदमत को रोक सकता है। लालच आपको यीशु से दूर लेकर जा सकता है। लालच आपकी खिदमत को आड़े हाथों ले सकता है। ये 12वां शागिर्द था जिस पर मैंने बात किया। एक और शागिर्द जो 13वां शागिर्द है, बड़ा जबरदस्त करैक्टर है, पालूस, जिसके नाम का मतलब है छोटा। मैंने दौड़ को मुकम्मल कर लिया। और इसके बारे में क्या सराहियां कि ये रोमी शहरी था, तो शायद इसे सलीब दिया गया रोमियों के तरीका के मुताबिक। जिस दिन पतरस को सलीब दी गई, पालूस का सर कलम कर दिया गया। 2 शागिर्द पकड़े गए, 2 को, एक को सलीब दिया गया, एक का सर कलम कर दिया गया। सेम डे याकूब और पतरस। फिर पतरस को जब पकड़ा गया, इसको रखा गया, याकूब का सर उसी दिन कलम कर दिया गया। जब पतरस को रखा गया, इस पर ट्रायल्स चले, ट्रायल्स के बाद से सजा सुना दी गई, पतरस को उल्टी सलीब दी गई। उसी दिन जो है वो पालूस का सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया गया। और पालूस थोड़ा जिद्दी था, और ये बैठा भला किसके घर पे था? इसकी जो लास्ट मीटिंग थी भला कहां पर हुई है? फिलिप्पस के घर में, फिलिप्पस की 4 बेटियों के साथ उन्हां दे घर बैठा ते कलाम दी मुनादी कर रहा। वो 4 नबियां, वो कवारी नहीं, वो भी बैठी हुई, सारे है बड़ी फैमिली माहौल बैठे, खाना शाना खा रहे, लोग भी बैठे हुए हैं, हंसी खेल रहे हैं। बाहर से एक नबी आया, उसका नाम था उकबस। उकबस नाम का नबी आया, वो अंदर आके कहता है, पटका पड़ा हुआ था, दुपट्टा, वो कह ले चद्दर, वो अपने हाथ और पांव बांध लेता, कहता ये जिसका भी है मुझे नहीं पता, खुदा कह रहा है कि जिसका भी है वो पकड़वाया जाएगा और रोमियों के हाथों मारा जाएगा, लिहाजा वो रोम में, यरूशलेम में ना जाए। सारे देख कर रोने लग पड़े, ये तो पालूस का है। पालूस उधर ही बैठा है, 4 बेटियां भी, फिलिप्पस भी, सारे रोने लग पड़े। कहते तू यरूशलेम ना जा, नबी ने आख्या मारा जाएगा। जिद्दी था। ये कहता है तुम रोकर मेरा दिल छोटा क्यों करते हो? मैं यीशु के लिए पकड़वाया जाने के लिए नहीं, मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। और ये वहां पर एक स्टेटमेंट दे के जाता, कहता मैंने दौड़ को मुकम्मल कर लिया। सीधा यरूशलेम जाता है, पकड़ा जाता है, ट्रायल चलते हैं, और सेम डे पतरस को सलीब दी जाती है और इसका सर कलम कर दिया जाता है यीशु के लिए। आए कदमों पर खड़े हो। मैंने मुख्तसर आपको बताया कि हम कहां पर खड़े हैं। मेरे अजीजों, इंजील का पैगाम जो आप तक पहुंचा है, ये शहीदों का खून भी इसमें शामिल है। यीशु का खून तो है, शहीदों का खून भी शामिल है। आप यीशु के लिए पकड़वाए जाने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं, तो जिंदगी आपकी है। हालेलुया।